सॉरी अगेन, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था. इधर भी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. स्टिल वी आर हियर. So now what I am asking about the past, as you ask me that how to overcome the past, right? So past में जो भी घटना हम लोगों के साथ होता है, say for example somebody good भी हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव किया, it's very good. Somebody misbehave किया, that's very bad. जो गुड बिहेव किया, अगर उसका साथ हम लोग अटैच्ड हो जाते हैं, ज़्यादा मेमोरी में वो रख लेते हैं, तो क्या हो जाता है पता है? वो घटना हम लोग को याद रह जाता है. वाई वी मेमोराइज फ्यू ऑफ आवर पास्ट स्टोरीज, नॉट द होल वन. আমরা কেন সব স্টোরি মনে রাখতে পারি না? বিকজ সব স্টোরির সাথে ইমোশনস অ্যাটাচড হয় না. আমাদের সাথে যদি কেউ খুব বাজে ব্যবহার করে, সেই কথাটা আমাদের মনের মধ্যে রেখে দিই. কেন? ইমোশনালি আমরা ওই সিচুয়েশনের সাথে অ্যালাইন হয়ে যাই. একটা এক্সাম্পল দিলে বোঝাতে পারবো. আমার সাথে এরকম ঘটেছে, আপনারা হয়তো অনেকে জানেন, অনেকে জানেন. আমি খুব ছোটোবেলায় ইলেকট্রিক শক লেগেছিল আমার. সো ইলেকট্রিক শক লাগাতে প্রবলেমটা কি হয়েছিল? সবথেকে বড় যে প্রবলেমটা হয়েছিল, যে ইলেকট্রিক শক লাগাতে সবথেকে বড় প্রবলেম হয়েছিল, ওই ঘটনাটা এখনও আমার ব্রেনে আছে. মিষ্টি, থ্যাংক ইউ. আমার কথাগুলো শোনো, তোমার ভালো লাগবে. আমার ওই ঘটনাটা এখনও ব্রেনের মধ্যে আছে. কেন? ওর সাথে আমার ইমোশন জড়িয়ে আছে. দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইমোশনস. যেরকম আমাদের একটা ইমোশনস আছে যেগুলো খুব প্রাইমারি ইমোশনের মধ্যে পড়ে, যেরকম স্যাডনেস, যেরকম হার্ট, যেরকম গিল্ট, যেরকম ফিয়ার. সো এই ইমোশনগুলোর সাথে যখন ঘটনাটাকে আমরা অ্যালাইন করে রেখে দিই, ওই ঘটনাটা ব্রেনের কোনো একটা জায়গায় ফাইল হয়ে স্টোর হয়ে যায়. এবার যখনই আমরা ওই মানুষটাকে দেখি বা ওই ধরনের কোনো সিচুয়েশন তৈরি হয়, আমাদের ভেতরে কিন্তু খুব কষ্টটার কথা মনে পড়ে. বিকজ উই আর ক্যারিং দ্যাট ইমোশন. নাও দ্য কোশ্চেন ইজ হাউ টু রিমুভ ইট. সো ওই যে ইমোশন যেটা অ্যাটাচড আছে, ওটাকে ডিসকানেক্ট করতে হবে ঘটনার সাথে. আর ডিসকানেক্ট করার প্রসেস হচ্ছে, এটা যখন আমি কলকাতায় যাব তখন আরও ডিটেলসে আপনাদের আমি বোঝাতে পারবো. আই এম অ্যাভেলেবল ফ্রম 1st of June. সো 1st of June থেকে আমি কলকাতায় থাকবো আপ টু 10th June উইথ দ্য ন্যাশনাল টিম. বাট স্টিল আই এম অ্যাভেলেবল ইন দ্য ইভিনিং টাইম অ্যান্ড আই উড লাইক টু হেল্প ইউ অল. somebody is writing over there, তিনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না, হয়তো তার ফেসবুক লাইভটা নেই, হয়তো সেই জন্য হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না. আই এম সরি. সো আমি বোঝাতে পারলাম আপনাদের, পাস্টের পুরো যে স্টোরি লাইন, আমরা যদি লাইফটাকে দেখি, অনেকে টাইম লাইনটাকে এভাবে দেখে, মানে আমাদের টাইম লাইনটা সামনে থাকে. থ্যাংক ইউ সুব্রতা. অনেকের টাইম লাইনটা থাকে এরকম, আগে পিছনে. আই এম ফাইন. আমার শরীর খুব ভালো আছে জয়জ্যোতি. তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো. ভেরি গুড সারিতা. সো আই নিড মোর কোশ্চেন্স. আপনাদের যদি আরও প্রশ্ন থাকে বলুন, তাহলে আমারও ভালো লাগবে. এনি টাইপ অফ কোশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক মি. সো প্রেজেন্টে থাকাটা খুব দরকার এবং ফিউচারের দিকে তাকানোটা দরকার. হ্যাঁ सपना जी, आपका क्वेश्चन क्या है? सर, आई एम हैविंग ट्रबल गिविंग माई 100% while I am competing. सर, what should I make sure give me 100%? वेरी गुड. अंशुल, मुझे अच्छा लग रहा है आपने इतना दिन बाद मेरा साथ ज्वाइन किया है. अंशुल, मैं 1st June कलकत्ता लौट रहा हूँ. 1st July से आई एम अवेलेबल. You can arrange something for your total sports people. So, Sapna ji or Aditya, if you really want to give 100%, what is the meaning of giving? So the question is, अगर आप अच्छा तरह से देते हैं तो वापस आपको मिलता है. अभी देना और मिलना में कुछ चैलेंजेस है. What you want to give first? Try to understand. You want performance. So performance, is it in your control? आपका कोई भी परफॉर्मेंस क्या आपका कंट्रोल में है? Yes or no? No. So परफॉर्मेंस अगर आपका कंट्रोल में नहीं है, तो आपका कंट्रोल क्या है? आपका कंट्रोल में मेनली जो है वो है आपका एक्शंस, आपका थॉट्स एंड आपका रिएक्शंस. रिएक्शन मतलब कोई आपको कुछ खराब बिहेव करते हैं, देन यू कैन बिहेव इन ए डिफरेंट वे. समटाइम वी आर प्रोएक्टिव, समटाइम वी आर रिएक्टिव. हे मनदीप फ्रॉम न्यूजीलैंड, थैंक यू मनदीप. मेरा बचपन का दोस्त मनदीप मेरा साथ ज्वाइन किया है. आई एम वेरी हैप्पी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हम लोग नियर अबाउट 20 साल से भी ज्यादा, मतलब मोर देन 25. क्या मनदीप, कितना दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे?
इट्स रियली थैंक्स टू फेसबुक और फेसबुक लाइव, हम लोग इतना दिन बाद आज मिल रहे हैं। 1989-90 हम लोग मिले थे, उसका बाद आज हम लोग मिल रहे हैं, मतलब नियर अबाउट 26 years बाद हम लोग फेसबुक में मिल रहे हैं। थैंक यू तपेश दा, काछापाड़ा सब खबर भालो। सो आदित्य, आपके लिए जो मेरा इंफॉर्मेशन है, स्टे फोकस, फोकस ऑन योर प्लानिंग पार्ट। प्लानिंग अच्छा से करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एग्जीक्यूशन है उस पे आएगा। देयर इज अ सेइंग कॉल, पीपल फेल टू प्लान, नॉट प्लान टू फेल। सो यू हैव टू प्लान प्रॉपरली सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट। अरे चंचल दा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू चंचल दा। বলো চঞ্চল দা, আমি কিভাবে হেল্প করতে পারি? अनिल जी, आपने मेरा जितना बाल है उसको सेटिंग करके देते हैं, और जब किसी का पास में जाता हूं सब पूछता है सर आपने बाल कहां से बनाया? तो आई एम एवरी टाइम सेइंग कि ये एक ही आदमी बना सकता है, वह अनिल, कैलकाटा में है। अनिल इज ए वेरी गुड हेयर ड्रेसर एंड आई वुड सजेस्ट यू गो टू द अनिल, मैं आपको दे दूंगा। हाँ मून, some people talk behind me and I get generally don't care, but sometimes I don't get affected, how to overcome it? আমি मून, আমি জানি তুই मून। सो मून का आंसर देने से पहले मैं और एक बार रुकिया कुछ लिखे हैं, बीइंग ए टीचर। हाँ मुझे पता है रुकिया जी, आप डॉन बॉस्को का टीचर हैं। आई फील फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट कैन नॉट रिकॉल व्हाट दे स्टडी। ओके, लेट्स गो स्लोली। সুমন, আই উইল ডেফিনেটলি গিভ ইউ অ্যান্সার। তুমি বহরমপুর থেকে আছো, কাজে স্যাটিসফ্যাকশন আসছে না, খুব ডিপ্রেশন আছে, নিড ইউর হেল্প, শিওর। সো স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এগোই। হ্যাঁ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड, बहुत सारा क्वेश्चन आए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन कैसे आंसर दे। जय ज्योति, मून, आई मीन टू से आई मून, इट विल बी गुड फॉर यू ऑल। सो मून का जो क्वेश्चन है बहुत एविडेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पीछे आदमी लोग कुछ 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 ऐसे करके बोलते रहते हैं, तो हम लोग कभी इरिटेट हो जाते हैं। हाउ टू इफेक्ट? सो देयर इज कॉल्ड PAMD प्रोसेस। मतलब there are, in relationship there are two type of communication. One is physically attached, mentally attached. One is physically attached, mentally detached, and one is physically detached, mentally attached. इसमें अच्छा से सुन लीजिए सब लोग, सभी लोग सुन लीजिए। वेरी गुड थिंग्स, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो समटाइम व्हाट हैपेंड, वी आर फिजिकली अटैच्ड एज वेल एज मेंटली अटैच्ड। ये वेरी गुड हेल्दी सिचुएशन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिनका साथ हम अटैच्ड होते हैं उनका जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव स्पीच है, वो हम लोगों को मन को खराब कर देते हैं। तो उसी टाइम यू हैव टू शिफ्ट इन ए डिफरेंट फॉर्म, द फॉर्म कॉल PAMD। मतलब फिजिकली अटैच रहिए, वो आपका सामने में है, दैट्स गुड, बट मेंटली उसका साथ पूरा डिटैच हो जाइए। वो जो भी बोल रहा है वो आपका अंदर में नहीं जाना चाहिए। इट्स कॉल्ड इनविजिबल। आपका मन का सामने में एक शील्ड जैसा होना चाहिए, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट इट। ओके। और कभी कभी जो जरा निजे लोग, कभी कभी जो लोग अपना आदमी होते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी अपना आदमी जब दूर में चला जाता है, व्हाट वी शुड डू, वी शुड गो लिटिल बिट फार, एंड ये फील करना है। फिजिकली डिटैच बड़ा बात नहीं है, मेंटली अटैच होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज मून, रिमेंबर दोज हु आर वेरी क्लोज टू यू, sometimes you have to behave like physically attached, mentally detached, and sometimes those who are very close to you and not in front of you, feel it from your heart. It's called mentally attached, physically detached. Okay, thank you. हाँ, किसी का रुकिया তোমার প্রশ্ন ছিল যে হাউ ইউ ক্যান গ্রো, हाउ यू कैन ग्रो, মানে স্টুডেন্টদের प्रॉब्लम কিভাবে তুমি হ্যান্ডেল করবে। सो स्टूडेंट का प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे जो लगता है, स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई वो स्टूडेंट का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। हर आदमी का एक प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। सो स्टूडेंट का जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है वो जानना इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्लियर है कि वो बच्चा क्या चाहता है, व्हाट ही और शी वांट फ्रॉम हिज लाइफ, और उसका साथ उसका पेरेंट का रिलेशनशिप क्या है, अगर वो चीज आपको पता लग जाएगा, देन इट्स लाइक ऐसे मैजिक की तरह हो जाएगा। है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? दैट्स गुड। और और सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। सुमन का क्वेश्चन है, मैं हिंदी में बात करना चाहूंगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में मेरा स्टूडेंट्स लोग हैं, दोज हु आर इन लाइन, आई एम वेरी हैप्पी।
वेदोत्रोही, आपका क्वेश्चन है नेगेटिव सिचुएशंस या नेगेटिव परिवेश से आप कैसे मन को शांत रखेंगे. द सेम आंसर गोes टू मून. एज आई टोल्ड यू, you have to behave like PAMD. Write it in your hand or write it in your mobile. PAMD, that means physically attached, mentally detached. Like remember, जब हम लोग छोटे थे तो कहीं पे अगर गंदा पड़ा रहता है, कूड़ा पड़ा रहता है, तो हम लोग कैसे जाते थे? ऐसे करके. जब हम लोग बड़े हो गए तो कैसे जाते थे? अंदर से ब्रीदिंग को बंद कर देते, तो हाथ नहीं लगाते थे. तो बाहर से किसी को पता नहीं चलता कि अंदर से हम लोग बंद कर दिए. ईशानी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. सो अंदर से हम लोग वो बंद नहीं करते हैं. मतलब वी आर बिकम मैच्योर टू डोंट यूज द हैंड टू स्टॉप आवर ब्रीदिंग पैटर्न. वी स्टॉप इट फ्रॉम इनसाइड. इट्स कॉल्ड कॉन्शियसली कॉन्शियसनेस. ओके, द सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई ओवर हियर. समझ में आ रहा है? मतलब आप किसी का सामने में रहिए किंतु मन में दूसरा कुछ सोचते रहिए, तब वो जो भी आपका पास बोलते रहेगा आपको मन में कुछ असर ही नहीं पड़ेगा. बेदोत्रोई, शायद मेरा सवाल का जवाब आपको मिला है. आहा, चंचलदा, द ग्रेट बिजनेसमैन आई एवर मेट. चंचलदा का क्वेश्चन है, आई एम ट्राइंग टू रॉकिंग माई बिजनेस. यस चंचलदा, यू कैन रॉक. यू हैव दैट पावर. बट द क्वेश्चन इज टू रॉक. You are in an MLM business, right? So MLM business is all about relationship business. So when you behave like a good personality with others, automatically business will come good. आपका business आते रहेगा और business grow भी करेगा. मुझे पता है, इट्स अ वेरी 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 नेचुरल थिंग बिजनेस में ग्रो करना. और ग्रो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको सिंपल थोड़ा अपना जो बिजनेस है उसका ऊपर एक ट्यून करना है. मेरा जो आपके लिए बोलना चाहिए चंचलदा, आप सिंपली ये काम कीजिए. मेंटली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. आपको क्या है, कभी कभी इमोशनली आप अपना कंसंट्रेट का जो चैलेंजेस है उसको आइडेंटिफाई कीजिए. आप एक लीडर्स पूल बनाइए जहां पे हर 15 डेज में आप उन लोगों से मिलिए और सबका सबका क्या क्या चैलेंज है उसका बारे में आप लोग बात करते रहिए. तो वो चैलेंज अगर आपको पता लग जाएगा, यू विल गो वेरी फास्ट. कोई भी चैलेंज के लिए ग्रो करना आसान हो जाता है. थैंक यू उत्पल दा. थैंक यू प्रबल दा. सुरेश काश्यप, आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं ना? आप जो जानना चाहते हैं वो मैं आपको हेल्प करना चाहूंगा. एक सेकेंड. অনলাইনে আসতে হবে তোমাদেরকে, ফেসবুক লাইভে. ফেসবুক লাইভে না না, লাইভে আসতে হবে বাবা. এখন আমি অন্য ফোনে আছি সবার সাথে. ফেসবুক লাইভে এসো. ফেসবুক লাইভ তোমার মোবাইলে আছে नाकि देखो, আমার ওয়ালে এসো. सॉरी, मेरा कोई स्टूडेंट वो पागल की तरह मेरा साथ बात करना चाहता है, उसको भी लाइव में आना था लेकिन समहाउ लाइव काम नहीं कर रहा है, इसीलिए लाइव थोड़ा स्टॉप हो चुके हैं. आई एम सो सॉरी. हाँ, सो अभी सवाल आता है हाउ यू कैन फोकस. लाइक जैसे देवर पिता ने क्वेश्चन किया, हाउ टू ने क्वेश्चन किया हाउ टू बी फोकस. सो फोकस होने के लिए आपको फर्स्ट सवाल पूछना है, व्हाट डू वांट फ्रॉम योर लाइफ. आप अपना लाइफ से क्या मांग रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट है आपको जानना. तो अगर आपको पता है आपको क्या चाहिए, देन नोबडी कैन स्टॉप यू. ओके, नोबडी कैन स्टॉप यू. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? थोड़ा टेक्निकल हैजर्ड है, एक सेकंड के लिए आप लोग रुकिएगा, लाइन में रहिएगा. आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, थोड़ा सा मुझे हेल्प करने दीजिए. यस, आई एम इन फेसबुक लाइव. यू हैव टू कम इन फेसबुक लाइव. ओके, फेसबुक लाइव में आना पड़ेगा आपको. ओके 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 ओके, ठीक है. सो आप लिखिए, आप लिखिए. हाँ हाँ हाँ, सॉरी.
एक क्वेश्चन आया है, दादा हाउ टू मेक अप माई माइंड टू स्टार्ट माई स्टार्टअप। राघव, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वी मेट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में हम लोग मिले थे। सो कैम्ब्रिज में हम लोग बहुत दिन एक साथ थे। उसको कैसे हम लोग आगे ले जा सकते हैं? हाँ, स्टार्टअप करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको समझना पड़ेगा क्या स्टार्टअप करना चाहते हो। व्हाट इज द मिशन स्टेटमेंट ऑफ योर लाइफ? क्या राघव आपका मिशन एंड विजन स्टेटमेंट क्लियर है? अगर क्लियर है देन वेरी गुड। अगर नहीं क्लियर है, यू शुड क्लियर व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। आपको ये क्लियर करना चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ राघव, फिर से आपने पूछा, आई हैव प्लान बट ओरिड बट नॉट गेटिंग थिंग्स राइट। हाँ, इट्स वेरी नेचुरल थिंग। कोई नया चीज आप जब भी करने जाएंगे, वो एक बार में तो आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। कोई भी चीज एक बार में आपने सीखे हैं। आप याद कीजिए राघव, जब आपने फर्स्ट टाइम वॉक किया था, क्या आप जन्म का बाद ही वॉक किया था? आपने कितना बार गिरा था? शायद आपको पता नहीं है, आपको फादर मदर को पता है। द सेम वे, अगर आपको स्विमिंग आता है, आपको पता है स्विमिंग में पानी में उतरने के बाद इमीडिएटली क्या आप स्विम करते थे? आपको क्या करना पड़ता था? थोड़ा पानी पीना पड़ता था। सो इन बिजनेस टर्म वी कैन से इट ट्रायल एंड एरर। और वो ट्रायल एंड एरर को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू फेस। देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड यू हाउ वी लर्न समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग कुछ भी चीज जो लर्न करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, लर्निंग साइकिल। मुझे पता नहीं है, दोज हु आर द व्यूअर्स, यू ऑल डोंट नो और नॉट, whenever we learn something, first of all we are conscious but still incompetence. We don't know what we don't know, the first stage. And the second stage goes, we know what we don't know. That means consciously incompetence. Then consciously we are trying to be competent, but sometimes we did some mistake. If we do something mistake, if we learn from that mistake, the next time वो मिस्टेक हम लोग नहीं करते हैं, तो वो मिस्टेक से कुछ लर्निंग मिलता है। सो एवरी लर्निंग क्या होता है? एवरी लर्निंग वो ब्रेन में जमा हो जाता है, जस्ट लाइक ए एसेट। और वही एसेट को हम लोग ग्रो करके ले सकते हैं। अशफाक जी, थैंक यू, आपने लाइक दिया। और इंडियन हॉकी के लिए मैंने बहुत कुछ सीखा कि इंडियन हॉकी 2020 वर्ल्ड कप में गोल्ड लेके आ सकता है, और उसका प्रोसेस मैंने सीख लिया है। Indian hockey, Indian archery, Indian table tennis, all the sports people, Indian, lawn tennis, every sports can achieve gold. It's all about here. ये जो न्यूरोलॉजिकल केमिस्ट्री है, इसको ट्यूनिंग करना पड़ेगा। राघव जी, अगर आपको और ज्यादा आंसर चाहिए, नो प्रॉब्लम। 1 जून आई विल बी रीचिंग कैलकाटा थ्रू वाया दिल्ली, सो यू कैन कीप इन टच एंड आफ्टर दैट वी कैन मीट, क्योंकि फर्स्ट 10 days में कलकत्ता में नेशनल कैंप ज्वाइन करने वाला हूँ। आई विल बी देयर, वी कैन मीट एंड वी कैन टॉक। श्रीमती, अपना क्वेश्चन। लियो सर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मुझे अच्छा लगा कि आप बैंगलोर से इतना बिजी लाइफ में भी मेरा बारे में सोचा और ऑनलाइन हुए हैं। थैंक यू सर। इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ हेल्प, प्लीज लेट मी नो सर। सो श्रीमती, यू आर फ्रॉम टेक्नो, आई नो। एग्जाम फोबिया, एग्जाम फोबिया जो है वेरी नेचुरल है, सभी का है एग्जाम फोबिया। ऐसा कोई भी मैं बंदा देखा नहीं आज तक लाइफ में कि जिसका, मैं थोड़ा लैपटॉप में भी ट्राई कर रहा हूँ, आप लोगों को देखें। हाँ, ओके, जस्ट ए सेकेंड एवरीबॉडी प्लीज। हाँ, मैं लाइव आ चुका हूँ अभी फिर से। थोड़ा चैलेंजेस चल रहा था। हाँ, एग्जाम फोबिया इज गुड। हर स्पोर्ट्समैन का एग्जाम फोबिया है, हर एजुकेशन में जो भी है उसका एग्जाम फोबिया है। एग्जाम फोबिया होना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, इट्स इनएविटेबल। ये हम लोगों को समझना चाहिए, और ये इनएविटेबल हम लोग ओवरकम भी कर सकते हैं, जस्ट टू मेक सम प्लान। जैसे एग्जाम का 2 दिन पहले अचानक अगर किसी को याद आया एग्जाम फोबिया है, वी कांट हेल्प देम, राइट। एग्जाम फोबिया को हेल्प करने के लिए पहले से, मतलब डे 1 से इसका ऊपर काम करना चाहिए।
सो एग्जाम फोबिया, ये मुझे लगता है इट्स ए गुड थिंग्स फॉर एवरीबडी. नो प्रेशर नो डायमंड. अगर कोई प्रेशर नहीं लेगा तो वो ग्रो नहीं कर सकता. सो बचपन से ही एक बच्चा को पता होना चाहिए एग्जाम इज नॉट ए एजुकेशन एग्जाम, लाइफ इज ऑल अबाउट एग्जाम. बचपन से हम लोग सब कुछ सीखते हैं गलती करते करते, so वो भी तो एक एग्जाम है कि नहीं. थैंक यू शिमादी फॉर योर क्वेश्चन. इफ यू नीड समथिंग मोर डेफिनेटली आई वुड लाइक टू हेल्प यू आफ्टर रीचिंग कैलकाटा. थैंक यू. अभी अरित्रो ने कुछ पूछा है. हाँ, प्रियंका का क्वेश्चन भी मैंने सुना हूँ. डेफिनेटली आई विल गिव यू द रिप्लाई. अरित्रो, बट शॉप इंडियन हॉकी टीमेर জন্য, नो 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 नो, not for Indian hockey team, for everybody. I am just like Indian hockey because मैं आज जो भी हूँ इंडियन हॉकी के लिए हूँ. इंडियन हॉकी, मैंने हॉकी खेला था, उसी का हिसाब से मुझे इतना कुछ मिला. ठीक है ना, जो रेस्पेक्ट, जो वैल्यूज. सो आज सभी के लिए मैं जहाँ पे सीखा हूँ, और इतो आई कैन डेफिनेटली हेल्प फॉर दोज हु आर इन मार्केटिंग, दोज हु आर इन MLM मार्केटिंग. সো রুমাদির কোশ্চেন হচ্ছে সেলফ মোটিভেশন কিভাবে হওয়া যায়. সেটা দেখানোর আগে আপনাদের দেখাই, আমি আপনাদেরকে ল্যাপটপেও দেখছি. দেখুন, আপনাদেরকে আমি ল্যাপটপে দেখতে পাচ্ছি, আপনারা लाइक দিচ্ছেন. सुरेश करकेरा मेरा फोटो में लाइक मारा, जो इंडियन गोलकीपर है. हाँ सुरेश कश्यप, थैंक यू. मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग लाइक मार रहे हैं. मैं इधर लैपटॉप में भी देख रहा हूँ और आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ. सो स्टेप बाय स्टेप सेल्फ मोटिवेटेड কিভাবে হবেন. Before self motivated yourself, you should know the meaning of motivation. What is the meaning of motivation? Motive toward action. Why you need to motivate it? Is it necessary कि motivation बाहर से आए, वो अंदर से आए? चित्रा चक्रवर्ती, আমি কিভাবে আরো নিজেকে ইমপ্রুভ করতে পারবো? डेफिनेटली मैं इम्प्रूव करने का बारे में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट थिंग, यू नीड टू नो yourself first. What are the strength, what are the weaknesses you have? थैंक यू निमिषा जी, आप मलेशिया से, मेरा रिक्वेस्ट में आप ऑनलाइन आए हैं. थैंक यू, मुझे अच्छा लगा. प्लीज आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग स्पोर्ट्स और रिगार्डिंग एनी पर्सनल ग्रोथ. डेफिनेटली इफ आई हैव द आंसर आई विल रिप्लाई विथ यू ऑल. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मोटिवेशन स्टार्ट फ्रॉम यू. सो इफ आई आस्क यू ऑल, if I ask you all, I don't know you are traveling or not, you are sitting in a room, just for a sake, if I am asking 3 key question, ऐसा 3 आदमी का नाम आप बोलिए जिनको आप बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, ऐसा 3 आदमी का नाम बोलिए जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. थैंक यू सोनाई, खूब ভালো লাগছে সোনাইকে দেখতে পেয়ে. সোনাই, थैंक यू. सोनाई के बारे में मैं अभी इंट्रोडक्शन दे, आप थोड़ा 2 मिनट बाद. और एक 3 क्वेश्चन है. ऐसा 3 आदमी का नाम बोलिए या नाम सोचिए जिनका नाम याद आते वक्त आपका मन खुशी में भर जाता है. रेडी क्वेश्चन? अतनु, आई विल डेफिनेटली गिव योर आंसर. हाँ, सो मैं जो बोल रहा था आप लोगों को, किसी को लिंक नहीं लग रहा है तो वो मैसेंजर में फोन कर रहा है ना, तो सबने चाहता है कम्युनिकेशन करना. सो देखिए, ये तीनों जो क्वेश्चन पूछा है इसमें 9 आंसर आना था, 9 नेम्स. वो 9 नेम में कहीं पे आप खुद का नाम लिखे हैं? यस और नो? आई नो इट्स नो. This is a very, 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 very common issue. We don't know how to respect ourselves. That's why when people say something towards ourselves, we feel bad because we don't know how to respect, how to protect ourselves. Right? Second, we don't know how to love ourselves. If we don't love ourselves, then how we will grow faster? हम लोग शीशे में अगर खुद को देखेंगे तब जाके खुद खुश होंगे, तब ना दूसरा किसी को देख के मुझे खुश लगेगा. परफ्यूम जब हम लोग खरीदते हैं, रिमेंबर व्हेन वी बॉट सम परफ्यूम, गुड परफ्यूम, वी आर इन्वेस्ट गुड मनी इन परफ्यूम. व्हाट वी डू नॉर्मली, फर्स्ट वी स्प्रे इट इन आवर ड्रेस. व्हाई? वो फ्लेवर शुड बी गो इन आवर नोज फर्स्ट, राइट? सो कुछ भी चीज हम लोग पहले फील करते हैं तब जाके
वो फीलिंग्स बाहर में आता है. So feel first, love yourself first, because if you don't know how to love yourself, you will never grow. এটা পড়তে পারো, ঠান্ডা লাগবে না হলে. One of my friend is there. बाद में मौका मिलने से definitely I will introduce my friend. So now the question of Priyanka. Those who are from MLM marketing. MLM मतलब हाँ, प्रियंका ने अपना आंसर में हु लव योरसेल्फ मैंने पूछा था, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, तो प्रियंका खुद का नाम लिखा है. वेरी गुड प्रियंका, प्राउड ऑफ यू. सो हाउ टू मोटिवेट योर डाउनलाइन. नाउ द क्वेश्चन इज, ये आज से ये डाउनलाइन जो वर्ड है, क्या हम लोग इसको हार्ट लाइन बोल सकते हैं? There is no downline in this business. There is no down. There is no up. It's all heart line. So first, respect your heart line. Then only they will respect you. To motivate others, you have to understand their primary emotional factors. Because everybody has his own style. Everybody has his own mind. Sometimes we don't know what we want from our life. So we are consultant, we are sponsorer. So what is the definition of sponsorer? Sponsor मतलब आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं. सो स्पॉन्सर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको, सॉरी मेरा गला थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा बहुत मैं एप्पल जूस पी लेता हूं. एक्चुअली ये एप्पल जूस नहीं है, ऑरेंज जूस है. सॉरी, ऑरेंज जूस नहीं है, मैंगो जूस है. মালাদি, থ্যাংক ইউ. আমার খুব ভালো লাগছে, আমার টিচাররা আমার সাথে রয়েছেন. মালাদি, আশীর্বাদ করো যাতে আরো মানুষকে আমি হেল্প করতে পারি. থ্যাংক ইউ এভরিবডি. হ্যাঁ, সো ডাউনলাইন ওয়ার্ডটা আজকে থেকে চেঞ্জ করে হার্ট লাইন and or associate. You can use how I can motivate my associate. So the thing, whenever you are telling associate, you feel your feel good factor become high, right? So feel good about your associate consultants, because they don't know what they want from their life. So it is your job first to give the realization what they want from their life. Because if you don't know what you like, then how you will grow. Hi Jyoti. Yes, we are partners. It's a very good word, partner. Hello partner. Hi partner. तनी पार्टनर, एक मूवी मैंने देखा था ना शाहरुख खान का, उसमें तनी पार्टनर बोल के एक जगह था. हाँ চিত্রাদি, নেক্সট লেভেল অ্যাচিভ করতে চান, ডিরেক্টর বাকি আছে, হয়ে যাবে. জাস্ট এ ম্যাটার অফ টাইম, হয়ে যাবে. জাস্ট যেটা করতে হবে, একটু সিস্টেমেটিক, थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, और थोड़ा टाइम को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा. इफ यू रेस्पेक्ट द टाइम, देन यू विल ग्रो फास्टर. स्पॉन्सर आर लाइक ए टीचर हु गाइड पीपल्स इन देयर डिफिकल्टीज एंड मोटिवेट देम टू गो अहेड. इट्स नॉट बैड, इट्स गुड आंसर. एनीथिंग मोर? हाँ, आपने पूछा था आदित्य कि आप कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को. अंडर एस्टिमेट करते हैं, इट्स गुड, आपने रियलाइज किया, और वो अंडर एस्टिमेट को आप ओवरकम भी कर सकते हैं. রুমেলি দি, অনেক দিন পর আপনার সাথে দেখা হলো, অনেক দিন, প্রায় 10-12 বছর তো হয়ে গেল. হ্যাঁ, ঈশিতা সান্যাল, স্যার যদি পজিটিভ নেগেটিভ থিঙ্কিং দুটোই একসাথে মাইন্ড ডাইভার্ট করে কিভাবে পজিটিভ কে অ্যাচিভ করব? সো ইটস এ গুড কোশ্চেন. হাউ মিতালি, थैंक यू फॉर कमिंग. इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ आ रहा है. सो हाउ टू ओवरकम इट? तो फर्स्ट थिंग, ये वेरी नेचुरल है, कुछ भी हम लोग. हाँ साथी दी, हेलो. कॉलोल, थैंक यू फॉर ज्वाइन. वन ऑफ माय स्टूडेंट, ही इज नाउ ए वेरी गुड बिजनेसमैन ऑफ बैंगलोर. ही इज वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका जो मतलब पॉजिटिव चीज आता है, उससे आपको क्या अचीवमेंट में मिलेगा, उसका पिक्चर आपको बड़ा करके देखना पड़ेगा. समटाइम वो जो पिक्चर होता है ना, छोटा पिक्चर होता है, सो वो पिक्चर पे ज्यादा कलर दीजिए और वो पिक्चर का शेप जो बड़ा कीजिए,
और विजुअलाइज कीजिए कि आपका सामने में एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक स्क्रीन है और उसी स्क्रीन में आपका पॉजिटिव होने के नाते एक बहुत बड़ा मूवी चल रहा है और वो मूवी आप देख रहे हैं इन ए पॉजिटिव वे। तो वो मूवी आप अगर अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे वो मूवी में? तो ये विजुअलाइज अगर आप कीजिएगा वेरी इजीली आपका जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो धीरे धीरे चला जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ट्राई करके देखिए। इमेजिन कीजिए कोई गुड थॉट्स, उसका सामने में बड़ा पिक्चर देखिए और वो बड़ा पिक्चर देख के आगे की तरफ जाइए। और कुछ सवाल है? यू कैन आस्क एनीथिंग। এনার্জি পেলাম, ওকে, কথাগুলো শুনে খুব এনার্জি পেলাম। আর কি কথা চাই? এনিথিং মোর? एनीथिंग मोर ऐसा? सोफिया, मुझे पता है शायद आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और उसी का हिसाब से आप फोन कर रहे हैं। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है। हाँ, और कोई सवाल है तो দেব শঙ্কর স্যার, অনেক থিঙ্কিং মাথায় আসে, মেইনলি পজিটিভ গুলোই নোট ডাউন করে ডায়েরিতে লেখা মনে হয় যদি লেটার। ওকে, ও ইউ আর ম্যাচিওর এনাফ সৌরভ, a pistol shooter of Jamshedpur. I want to ask how to reduce my fear. So how to reduce your fear is a very good thing. I will let you know very soon. জ্যোতি শর্মা, জ্যোতি জি আপনি বলেছিলেন 100% দিলে কোনোদিন এক্সপেক্ট করবে না রিটার্ন, এটাই ফলো করা উচিত। থ্যাংক ইউ। ওরে বাবারে, बहुत कुछ लिखे हैं। सो Devshankar, Saurabh, if you really a pistol shooter, first of all you have to learn how to control your emotion when you are in the मतलब आपका शूटिंग जोन में हो। आपका जो शूटिंग जोन में आप हो, प्लीज होल्ड ऑन। ओके ओके। हाँ, मेरा दोस्त का पास मैसेज आया है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ और ये बोलना चाहिए, बट आई हैव टू गो स्लोली। इफ आई गो स्लो देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू ऑल। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ स्लोली बात करने का। इज इट गुड फॉर यू ऑल? ओके, सो अभी मैंगो जूस का टाइम हो गया है। I would like to offer you virtual mango juice to you all. If you want to have, I'll be very happy. Thank you. So, पिस्टल शूटिंग जब आप करते हैं सौरभ, यू हैव टू बी इन द जोन। सो व्हाट डू यू मीन बाय इन द जोन? जोन का मतलब होता है जब आप परफॉर्मेंस जोन में रहते हैं, आपका ब्रेन, आपका फिजियोलॉजी और आपका माइंड तीनों सेम वे में कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस टाइम अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो नॉर्मल जो आप परफॉर्मेंस टाइम होता है वो भी अच्छा हो जाएगा। सो इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, इट्स पॉसिबल है। शांतन, यू आर ए एक्टर, सो हाउ कैन आई हेल्प यू? और कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल। इट्स चेतन, यस चेतन, छोटा चेतन नहीं, ये हम लोग का बचपन का कैम्ब्रिज का दोस्त चेतन। ये बहुत अच्छा लड़का है, डॉक्टर चेतन शर्मा, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम दिल्ली। वो बहुत बड़ा आज के डेट में पर्सनालिटी है। और चेतन, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम सिटिंग इन माय वर्ल्ड हेड ऑफिस इन कोलकाता। नो, ये वर्ल्ड हेड ऑफिस है कैम्ब्रिज में। सो आई एम इन कैम्ब्रिज एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है आप देख रहे हैं। हाँ, I want to produce a national champion in badminton, but no one believe in female coaching. What do you mean by female coaching? आप क्या कोचिंग देते हैं? तुलिका दी, थैंक यू फॉर कमिंग। अपना ছেলে में কেমন আছেন তুলিকা दी? অরুন্ধতী दी, थैंक यू। सो यामिनी, यामिनी आपका सवाल मैंने पूछा। आई वांट टू प्रोड्यूस अ नेशनल चैंपियन इन बैडमिंटन, दैट्स गुड, बट नो वन बिलीव इन फीमेल कोचिंग। अच्छा, अगर आपको ऐसे लगता है, आपको क्यों ऐसा लगता है? मेरा सेकंड सवाल है, आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आपका क्यों ऐसे लगता है कि आपको कोई नहीं बिलीव कर सकता है?
बोलिए। বিকাশ দা, সম্পর্কে আমার দাদা, সম্পর্কে খুব রেসপেক্টেড পার্সন। খুব ভালো লাগলো তোমরা অনলাইনে আছো। सो यामिनी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि फीमेल कोचिंग, क्यों आपका साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए कहीं पे कोचिंग करने गया है और उस वहां पे बोला है कि फीमेल कोच है, वी डोंट लाइक इट, ऐसा कभी हुआ है? आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में ट्राई करना है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया में ये पॉसिबल है कि कहीं पे आपको रिजेक्शन आएगा, शायद ऐसा भी तो नहीं है। सुषमा, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सुषमा फ्रॉम बैंगलोर, आई एम वेरी हैप्पी कि सुषमा तुम ऑनलाइन हो। ये मैं बिलीव फेल करता हूं, क्योंकि एज ए इंडियन मुझे भी पता है कि जब कोई कोचिंग में जाते हैं तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट रहता है, और वो रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो शायद आपको पता है, शायद मुझे भी पता है, लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट में वो लोग कोई स्पेसिफिकेशन बोल देते हैं, तो ये एक चैलेंज है। आई नो दैट। मेरा जो सजेशन है यामिनी आपके लिए, आपको ऑल ओवर द इंडिया ट्रैवल करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल यू आर बेस्ड इन न्यू दिल्ली और बेस्ड इन पुणे, एंड आप सोच रहे हैं पुणे में ही आपको जॉब मिलेगा। आई डोंट थिंक सो दिस विल बी द फाइनेस्ट थिंग, क्योंकि आपको मूव करना पड़ेगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला, ये मार्केटिंग का फॉर्मूला है, इज W5। सम विल, some won't, so what? Start working, someone is waiting for you. Some will मतलब कोई आपको रेस्पेक्ट देगा या कोई आपका साथ आएगा। Some won't, कोई नहीं आएगा, मतलब कोई आएगा कोई नहीं आएगा, some won't। अभी क्वेश्चन आता है so what, तो क्या हो गया, नहीं आएगा नहीं आएगा। स्टार्ट वर्किंग, आप अपना काम करते जाइए। आपके लिए काम क्या है, टू मेक ए प्लान कि कहीं पे कहाँ पे बैडमिंटन कोच लिया जा रहा है, और वहां से बात कीजिए, और बात करने का बाद अब एक ट्राई लीजिए, दो ट्राई लीजिए, तीन ट्राई लीजिए, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। हाँ, इट विल टेक टाइम। मैं आपके लिए एक सजेशन देना चाहूंगा, जो मेरा लर्निंग है, मेरे लाइफ में सीखा हूं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि आप जो भी जहां पे अप्लाई कर रहे हैं आप वो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको अचीवमेंट नहीं मिल रहा है। इसका सिंपल रीजन है, अमिताभ बच्चन का रियल स्टोरी है, उनका बहुत बार ऐसा हुआ है कि परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। तो उनका फादर ने क्या किया था पता है, उनका फादर ने मतलब हरिराय बच्चन अमिताभ को बुलाया, अमिताभ मन खराब है, तो अमिताभ उनका पास गया, फादर का पास, और फादर का पास जाके बोले पिताजी क्या हो रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पता है गारंटेड रिजल्ट मिलना चाहिए, क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है? तो उनका फादर ने बोला, बेटा याद रखना जिंदगी में, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। तो सिंपल सवाल है, उसने पूछा पापा ये क्या आंसर है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा? तो पापा ने बोला देख बेटा, मन का हो तो अच्छा मतलब वो तेरा ख्वाहिश तेरा इरादा से हो रहा है, और मन का ना हो तो अच्छा मतलब वो इट्स ए गॉड विश, इट्स ए यूनिवर्सल पावर विश। अगर छोटा चीज में आप संतुष्ट हो जाओगे तो बड़े चीज कैसे मिलेगा? और पत्थर ऊपर में मिलेगा लेकिन डायमंड नीचे में मिलेगा। आपको अगर चाहिए पर्ल, मोती, वो पानी के ऊपर नहीं मिलेगा, वो पानी का नीचे मिलेगा। तो कहीं भी चीज आपको अगर अचीव करना है तो वो आपको डीप में जाना पड़ेगा, डीप 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 डीप। तो जितना ज्यादा आप डीप में जाएंगे तो आपका उतना इजीली आंसर मिलेगा। सो थैंक यू, मुझे अच्छा लगा आपने लाइक दिया कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। शंपा का क्वेश्चन है, माई सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन चेस। ओके, चेस में अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं चेस मतलब इट्स जस्ट ए बोर्ड गेम। चेस इज ऑल अबाउट फिजिकल मोर, मेंटल मोर, इट्स नॉट मेंटल मोर फिजिकल लेस। नॉर्मल थिंकिंग क्या है, चेस मतलब वो खाली बैठ के खेलना है। मेरा सजेशन है, आई एम वर्किंग विद ऑल द एलिट का चेस और एलिट chess people, those who are grandmaster already, I'm working with them। so मेरा एडवाइस है कि एज पर मैं जितना चेस प्लेयर को देखा हूँ आज के डेट में इंडिया का, ऑलमोस्ट
बंगाल का ऑलमोस्ट 99% elite sports personnel come to me for their discussion, for their challenges. So मैं उन लोगों के साथ भी सीख रहा हूँ. So मेरा पर्सनल एडवाइस है, फिजिकल एक्सरसाइज में ध्यान दीजिए, स्विमिंग में दीजिए. विद इन 7 days, मिनिमम 4 days, ही और शी शुड बी स्विम. अगर वो अच्छा चेस प्लेयर बनना है, मैथमेटिक्स करना पड़ेगा. अगर कोई सोच रहा है कि खाली चेस खेलूंगा और मैं इंटरनेशनल इलो रेटिंग मेरा बढ़ते रहेगा, आई डोंट थिंक सो. मैं गलत भी हो सकता हूँ. आई डोंट थिंक सो. अगर बड़ा चेस प्लेयर बनना है, आप लोगों को पता है मैग्नस कार्लसन दिन में मिनिमम 2 से 3 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करता है. सो इफ यू डू फिजिकल एक्सरसाइज, देन इट विल बी वेरी इजी टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. क्योंकि आपका फिजिकल बॉडी और आपका मेंटल बॉडी क्या होता है, कनेक्ट होता है. और फिजिकल और मेंटल बॉडी को अगर आपने मतलब अलाइनमेंट करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो करोगे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? राजुदा, my nickname. Somebody asked me. Somebody, no, he is very close to me. हिंदी में बोलते हैं मेरा साला बाबू है. Rajuda, I am scared to leave my present job and switching to new better opportunity. শুধু ভয় ওই অর্গানাইজেশনতে আমি মানিয়ে নিতে পারবো তো. That is why become or well last 11 year. এই ব্লকেজ থেকে কি করে বেরোবো? Good question. One of my friend, Sojo, she is my childhood friend. बचपन का सबसे छोटा, बचपन का मतलब क्लास 1, 2, 3, 4 में जब मैं थे, तब से मेरा दोस्ती था सोजो से. सोजो, सुरेश, we are very good friend, but unfortunately there is a मतलब एक बहुत डिजास्टर में सुरेश आज हम लोगों के साथ नहीं है. अब सो सैड अबाउट दैट. मेरा बचपन का दोस्त. लेकिन सोजो मेरा साथ में है. सोजो अभी शायद स्कॉटलैंड में है, आई थिंक सो. थैंक यू सोजो फॉर कमिंग. हाँ, तो मैं जो बोल रहा था कि वो जो माइंडसेट को ओवरकम करना आयन के लिए, क्योंकि वो एक नौकरी करता है और वो 11 साल से वो नौकरी कर रहा है. उनका दिमाग में ये चल रहा है कि हाउ टू ओवरकम ये फोबिया कि अगर वो नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी में जाए, अगर एडजस्ट ना हो. और my suggestion to you, it's my personal suggestion. You know, I'm working from some government organization. You all 90% of my friends, everybody know me कि मैं जॉब करता था पहले, गवर्नमेंट जॉब. और उसमें मुझे लगा था आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जॉब. एंड वन फाइन मॉर्निंग आई रियलाइज इज enough. I want to grow fast and I want to do something unique, something different. So what I decided, I just want to start my study again. And I face some challenges. There are different challenges in life. For me also, I am facing my professional, emotional challenge, professional challenge, as well as some decision challenge. But somehow, वीरेंद्र सर जी, थैंक यू सर. आप कैसे हैं? मुझे अच्छा लगा आपको देख के. मैं सोनाबाद लेने के लिए जाने वाला हूँ जब मैं फिर पतियाला आने वाला हूँ. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वीरेंद्र जी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे लाइव मिल गए हैं. सो मेरा बोलने का मतलब है, आयन के लिए वेरी सिंपल आंसर है. आयन, if you really want to go fast, you have to take the decision. It's not your condition you are here. It's your decision. That's why you are here. If you are happy with your salary, that's okay. But as per my realization, we never grow fast in comfort zone. If I want to stay in my comfort zone, I will never grow fast. If I really want to grow fast, I have to face some uncomfort situation, some inevitable situation, some new situation. Sometimes we have to take some risk. Like, look at me, I take a risk. हाँ वीरेंद्र जी, आप इंग्लैंड में हैं, लंदन में या कहाँ पे हैं बताइए. मैं कैम्ब्रिज में हूँ. we can meet very soon. मैं अभी भी 1 week में यहाँ पे हूँ. we can meet. कीर्ति दीदी, केमन आছেন আপনি? थैंक यू फॉर कमिंग. सो आयन, मेरा सजेशन है आपके लिए
अगर मैं आपकी जगह रहता तो मेरा एक डिसीजन होता, अगर आप मेरा जगह होते तो मेरा लाइफ के लिए शायद दूसरा डिसीजन होता। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, एक फॉर्मूला मैं शेयर करना चाहता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी में या एनएलपी में एक बहुत अच्छा ये एग्जांपल्स है। देयर आर टू थिंग, वन इज सेम, two thing, one is same and one is different. So sometimes we don't want to change ourselves, that's same. Sometimes we change little things, like same different, मतलब सेम रहना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज। से फॉर एग्जाम्पल ये क्वाड्रेंट जैसा है कि कभी कभी हम लोग डिफरेंट सेम है, कभी कभी हम लोग सेम डिफरेंट है, कभी कभी टोटल डिफरेंट है। आई वांट टू गिव द एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल आपका पास एक कार है, वो कार आप 10 साल से चला रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ब्रांड है, स्पेसिफिक कलर है। वन डे यू डिसाइडेड दैट आई वांट टू चेंज द कार। लेकिन डिसीजन आपने कैसे लिया? आपने ब्रांड सेम रखा, शायद गाड़ी का जो पैटर्न का गाड़ी लिए वो बदल दिया, और एल्स आपने सेम कलर रखा या ब्रांड चेंज कर दिया। मतलब या आपने टोटली डिफरेंट कलर डिफरेंट ब्रांड लिया है। से फॉर एग्जांपल अगर 4 बनाते हैं ना, 1 सेम, सेकंड सेम डिफरेंट, थर्ड डिफरेंट सेम एंड फोर्थ टोटल डिफरेंट, ऐसा करके क्वाड्रेंट सोच लीजिए। तो फर्स्ट है सेम, जैसे चल रहा है यहाँ प्रबलदा, आई गॉट योर पॉइंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, जस्ट होल्ड ऑन, ओके। शुभर्ती, थैंक यू फॉर कमिंग, वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड शुभर्ती। मनदीप भी है शुभर्ती, मनदीप न्यूजीलैंड से लाइन में है। थैंक यू शुभर्ती, nice to meet you. I definitely give Maya's answers as well as others' answer, but right now just go through the flow. Listen. So, Oyon, if you really want to like the same job, go for it. If you really want to change, then change slowly, step by step. You want to change the job because you want more. Maybe satisfaction, maybe money, maybe promotions, like this. Thank you, Reshma. Ask me, what do you want from me? So, अभी आपको डिसीजन लेना है, क्या आप सेम डिफरेंट है या डिफरेंट सेम है। इन दिस वर्ल्ड मोर देन 95% पीपल आर सेम और सेम डिफरेंट और डिफरेंट सेम। वेरी फ्यू पीपल गो फॉर टोटल डिफरेंट, मतलब सब कुछ डिफरेंट। लाइक लुक एट मी, मैं थैंक यू श्वेता फॉर कमिंग। आई नो दैट यू आर इन अगरतला। My all wishes with you all, with your team. So say for example आयन में जो बोलने वाला था कि मेरा सब कुछ डिफरेंट, मतलब मेरा प्रोफेशन भी मैंने बदल लिया, मेरा जॉब भी मैंने पूरा छोड़ के मैं अपना एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ। तो ये एक टोटल डिफरेंट डिसीजन था, लेकिन इसके लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है। वी डोंट नॉर्मली, इंडियंस वी डोंट लाइक रिस्क। डोंट टेक इट पर्सनली इन ए डिफरेंट वे। ये एक नेचर है जो एशिया में पीपल्स का एक नेचर होता है, स्कैंडिनेवियन पीपल्स का एक नेचर होता है, यूरोपियन पीपल का एक नेचर होता है। हर पीपल का जैसे फूड का डिफरेंस है, इंडिया में जैसा एवरी 100 किलोमीटर फूड का डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। इट्स गुड, प्रत्येक मतलब हर आदमी का अपना अपना एक फॉर्मेशन है। द सेम थिंग हैपन विथ मी, ओके। नाउ आस्क योरसेल्फ, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, ऑयन। और जो आप चाहते हो ऑयन अपना लाइफ से, क्या वो मिलने के लिए आपको बदलना इंपॉर्टेंट है? इफ यू रियली वांट टू चेंज योरसेल्फ, देन ओनली यू विल गेट समथिंग डिफरेंट, एंड इफ यू डोंट वांट डिफरेंट थिंग, देन स्टे इन द सेम प्लेस। Now everybody never ever expect that everybody will support you. It will never happen. I don't want to discourage you. I'm just giving my example. Never ever think that everybody will come and appreciate Ayan, that Ayan, go ahead. 90% people say, Ayan ki dorkar, bhaloi to achiস, bhalo maine pachchis, abar ki dorkar, etai to tor bhalo সংসার চলে যাচ্ছে। So Anil, thank you. So it's up to you. आपको क्या लगता है, आपका मन क्या बोलेगा? It's one life, it's only one life, and time is like this.
time fly like anything. So now it's up to you, Ayan, आप अपना फ्यूचर में कैसे लाइफ को लीड करना चाहोगे. अगर आप सच्चे दिल से डिफरेंट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो सेम से आपको सेम डिफरेंट बनना पड़ेगा. से फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग फूड क्या होता है, हम लोग कभी कभी सेम रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं. सेम रेस्टोरेंट. एक दिन क्या हो गया, सेम रेस्टोरेंट में गया बेटा या बेटी, बच्चा, वो फादर को बोला फादर वी वांट टू चेंज द फूड. तो रेस्टोरेंट सेम था, फूड बदल गया. ऐसा फिर 2-4 महीना चला, सेम रेस्टोरेंट डिफरेंट फूड. एक दिन हस्बैंड वाइफ दोनों ने डिसाइड किया अरे ये रेस्टोरेंट का तो हम लोग सब कुछ खाना खा लिया, चलो डिफरेंट रेस्टोरेंट में सेम फूड ट्राई करते हैं. तो डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग और फूड कभी कभी सेम फूड ट्राई करके देखते हैं कैसे लगता है. वो भी 2-3 दिन बाद क्या होता है कि भाई ये बहुत मैंने इंडियन फूड खा लिया, अभी चलो एकदम इटालियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे सब कुछ बदल जाता है. तो ऐसे ही एक सेम से एक आदमी सेम डिफरेंट सेम एंड देन टोटल डिफरेंट होते हैं. नाउ इट्स योर चॉइस. इन इंडिया इफ यू गो थ्रू द फूड हैबिट, those who are from south sometimes they want to eat northern India's food. Sometimes those who are from northern India they want to eat Bengali foods or sweets, and those who are from Bengal sometimes they want paratha chapati of northern India's food. So the same thing happen in our life. It's a vicious circle. Same different same different. Few people birth भी same में होता है, खत्म भी same में हो जाता है. They are called below average people. I'm not criticizing anybody, don't take in anything personally, just I'm giving some theoretical and practical example. Few people want change but not in a whole way, small way, and few people want radical change, they want to change everything. Okay, बहुत सारा सवाल मेरा पास आया था. Saurabh Banerjee sir, it is good to grow fast or step by step in AR pistol shooting. So a very pertinent question है. मुझे लगता है it will decided by you only. आपको क्या लगता है? There is no speed slow. वो तो पर्सपेक्टिव है. किसी के लिए जैसे एक स्नेल के लिए पर्सपेक्टिव क्या है, बहुत स्पीड में वो जा रहा है, और एक रैबिट के लिए वो बहुत स्पीड में जा रहा है, लेकिन परसेप्शन है. The same thing, there is no right wrong in this world. It's our perception which create our right or wrong. ठीक है ना? Yes, Madhumita di, after coming back, definitely I will give you some guideline to you all. और सीमा दी का क्वेश्चन है, रूमा दी भी उसको सपोर्ट किया है सर. सीमा चक्रवर्ती हमार सेम क्वेश्चन रूमा चक्रवर्ती. हाँ, अगर नोटी दुष्टू मतलब তাপস সরকার, হ্যালো স্যার, আমি সৌমাল্য, আপনি কেমন আছেন, আমি কবে আসবেন? আমি 1st জুন কলকাতায় অ্যাভেলেবেল, ডেফিনেটলি কল মি এট 1st জুন. ময়ূক, আই থিঙ্ক টু বিকাম এ মাল্টিটাস্কার. ওকে, মাল্টিটাস্কার, ওয়াও. We need to manage time. How this can be done with almost concentration? Multitasking is good, but what is the definition of multitasking? ये भी पर्सपेक्टिव है ना, कि हम लोग जो बात करते हैं ना उसमें 95% बात एवरेज बात करते हैं. जैसे मैं किसी से पूछा कैसा चल रहा है, नॉट टू बैड. यूके में यही बहुत मतलब यूज टू वर्ड है, नॉट टू बैड. ये तो ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम फैबुलस, आई एम फाइन, आई एम थैंक, आई एम गुड. इट्स नॉट टू बैड, मतलब वो बैड वर्ड है, मतलब टू बैड नहीं, कुछ तो बैड है. उसी से पता लग जाता है उसका स्टैंडर्ड ऑफ थॉट क्या है और वो अपना फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहा है. तो सेम थिंग, इफ यू रियली वांट टू मल्टीटास्किंग, नो नीड टू मैनेज योर टाइम, यू हैव टू मैनेज योर इमोशन टुवर्ड्स द टाइम. क्योंकि टाइम ब्रेन में एग्जिस्ट नहीं करता. जब आप सो जाते हो, डीप स्लीप में चले जाते हो, कभी कभी आधा घंटा भी लगता है 6 घंटा. कभी कभी होता है ना, 10 मिनट ट्रेन में हम लोग सब सो गया है, अचानक नींद खुल गया, वो 10 मिनट लगता है 2 घंटा जैसे. There is no time-space reality inside our mind. It's just a perception. So मुझे लगता है अगर टाइम को यूटिलाइज करना है, you should know what you want from your life. It's very much clear. जैसे अग्नि बोल के मेरा एक स्टूडेंट अभी लाइव है, वो वेरी सुन इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने वाला है क्रिकेट में. इज अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर एंड वेरी फोकस्ड. मैं उम्मीद करता हूँ अग्नि विद इन ए ईयर इंडियन टीम में आ जाएगा. अग्नि इज वेरी गुड वन ऑफ माई स्टूडेंट.
মায়া, आपका क्वेश्चन है যখন আমরা কিছু প্ল্যান করি সেই অনুযায়ী কাজ হয় না তো কি করা উচিত? Very good question. Simple answer: people fail to plan, not plan to fail. If we fail, that means we don't have proper planning. And if we really want to grow fast, we need to plan. Plan and pre-plan दोनों जरूरी है. Say for example, कोई planning के लिए जो सबसे important चीज है, वो प्लान करने से पहले उसका पहले बैकअप प्लान भी रेडी करना चाहिए. से फॉर एग्जांपल, आपका पॉकेट में अभी 200 रुपया है एंड यू वांट टू गो टू द रेस्टोरेंट, और आपको पता है आपका पास जितना पैसा है और जो एरिया में आप जाना चाहते हैं उस एरिया में 2-3 ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें 200 रुपया में एक आदमी का पेट भर जाएगा. अगर प्लान करके नहीं जाएंगे तो क्या चैलेंज आएगा? आपने गया वो रेस्टोरेंट में, जगह नहीं है या फूड खत्म हो गया. बगल वाला रेस्टोरेंट में अगर बहुत ज़्यादा प्राइस है तो आपके लिए वो चैलेंज हो जाएगा. सो प्लान बिफोर यू स्टार्ट द जर्नी. जैसे माया, आपका लाइफ का ड्रीम क्या है? आपने लिखा नहीं, तो ये एक एग्जाम्पल दे के बोलने से मुझे आसान हो जाता है. हाँ. सो और एक बात है, कोई टीचर ने पूछा है कि बच्चा लोग जब दुष्टुमी मतलब बदमाशी करते हैं तो हाउ वी कैन ओवरकम इट. नॉटी स्टूडेंट, सर प्लीज टेल मी हाउ टू कंट्रोल a naughty student if he or she is not concentrate. So play some game. Concentration ऐसे बहुत सारा गेम है जो गेम आप खेल सकते हैं. जो एक गेम concentration का है जो है बैक काउंटिंग, एक गेम है क्रॉस काउंटिंग, और मुझे लगता है अगर पॉसिबल है ABCD को क्रॉस वाइज लिखाइए. से फॉर एग्जाम्पल AZBY CX. देखिए मुझे भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, बट प्ले हाउ टू प्ले द गेम. आपको AZ लिखने का बाद स्टॉप करना है, मतलब उसको कवर करना है, सो दैट यू हैव टू मेमोराइज थ्रू योर ब्रेन. आप देख के नहीं लिख सकते हो, आप स्लो प्रोसेस में जा सकते हो. हाँ, और कुछ सवाल अगर सवाल है, आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल. शुभ्रो भट्टाचार्य, सर प्लीज टेल मी हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव वेदर और बैड सिचुएशन. इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज नेगेटिव और बैड, एवरीथिंग इज फेलियर, एवरीथिंग इज फीडबैक. वो आपने फीडबैक लिया है और उसी की चलते आपने ऐसा किया. शत्रुपा, लाइफे যখন কিছু করতে চাই তার আগে কনফিডেন্ট হারিয়ে ফেলি, বাট কি করে কনফিডেন্ট হবো? স্যার আই ডু প্র্যাকটিস while shooting in my range, but 2 years I am practicing in national shooting championship. सौरभ, मैं आपके लिए आंसर देना चाहूँगा. आज के डेट में इंडियन टीम शूटिंग में चेक रिपब्लिक में है, जहाँ पे मेरा 3 स्टूडेंट हैं, दोज हु आर परफॉर्मिंग इंटरनेशनल. सो आई एम वर्किंग विद द शूटिंग स्पोर्ट्स पर्सनल ऑल्सो. So definitely I will help you. You personally message me. Definitely I will let you know later on. हाँ, सो जो কনসেন্ট্রেশন গেম मैंने देखा মিতালি স্যার, যখন আমি কেউ খুব ইনসাল্ট করে তখন আমার কি করা उचित? ओके, अगर आपको कोई इंसल्ट करता है तो आपको सोचना चाहिए कि वो इंसल्ट करता है जो आप इंसल्ट करने देते हैं. इसलिए इमेजिन कीजिए आपका सामने में एक शील्ड है, शील्ड इनविजिबल शील्ड है, और कहीं पे गोली आ रहा है. इमेजिन कर लीजिए, जस्ट कोई शूट किया है, वो गोली अगर यहाँ पे वो बुलेट प्रूफ गार्ड रहेगा तो क्या होगा? वो लग के वापस आ जाएगा. थैंक यू दीपेन फॉर ऑनलाइन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इंश्योरेंस, आस्क मी, आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल. सो इमेजिन कीजिए कोई गोली किया, वो गोली आपका स्क्रीन में लगना था, लेकिन अगर इनविजिबल वो गार्ड रहेगा बुलेट प्रूफ, तो गोली आपका बॉडी में नहीं लगेगा. So we are giving more attention to people, those who are insulting us. It's not people insulting us. It's, I'm sorry to say, it's we give the situation to insult us. Never ever give the opportunity to insult us. Indranil Chakraborty, Are Baba, Indranil da, thank you. TFA, Tata Academy. And I am fortunate that I am also now the Tatans. Because you know Indranil, I am very happy कि टाटा का साथ मेरा ज्वाइनिंग हो गया है, एंड आई एम वर्किंग फॉर टाटा फ्रॉम 1 जून. थैंक यू. हाउ कैन वी मोटिवेट यंग बॉयज टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म टारगेट? इंद्रनील एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सनल है, एज वेल एज वो TFA टाटा फुटबॉल एकेडमी का कोच भी है.
आप लोग जानते होंगे टाटा कितना बड़ा है, कितना बड़ा बड़ा फुटबॉलर को प्रोड्यूस किया है आज तक वर्ल्ड वाइड। जितना भी इंडियन स्पोर्ट्स का अच्छा प्लेयर है, दे आर मोटिवेटेड फ्रॉम टाटा। थैंक यू इंद्रनील, सी यू सून। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास आने वाला हूँ, मिलूंगा। हाँ, सो इंद्रनील, इट्स वेरी challenging for today's life because there are so many distraction, mobile distraction and other things. So first thing first, बड़ा जो पिक्चर है इंडिया फुटबॉल किस तरह ग्रो कर रहा है, वो रियलाइजेशन उनको देना है और उनको ये रियलाइजेशन देना है। आई वुड लाइक टू शेयर यू स्टोरी इंद्रनील। आई होप आप लोग बोर नहीं फील करेंगे। क्या आप चाहेंगे मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूं? कैन यू प्लीज? हाँ, मैंगो जूस, थैंक यू। वुड यू लाइक टू लिसन ए स्टोरी? आप लोग एक स्टोरी सुनना पसंद करेंगे? अगर पसंद करेंगे तो लाइक दीजिए, सो दैट मुझे पता लग जाएगा। आई वांट लाइक, अगर स्टोरी सुनना आप पसंद करेंगे तो। हाँ, लाइक आया, 2 लाइक आया। मुझे 10 लाइक चाहिए, 3 लाइक आया, 4 5 6 7 8 9। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस 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 कीजिए अभी, बस। अभी स्टोरी में शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी ऐसा है कि एक कंट्री था, जो कंट्री में एक बहुत बड़ा स्कल्पचर था, जो मूर्ति बना था, पत्थर का मूर्ति। और जिन्होंने एक दिन ये सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है जो कभी कोई किया नहीं है। और वो इतना अच्छा भी था, राजा ने उसको, वो जो सोचा, राजा ने उसको बुलाया भी। और राजा ने उसको बोला, आप मेरे लिए एक 1 फुट का मूर्ति बनाना। तो उसने बोला ठीक है। तो वो मूर्ति कहाँ पे आप महाराज लगाएंगे? तो महाराजा ने बोला, आपको पता है जो हम लोगों का जो कंट्री है और उसका जो कैपिटल है, और कैपिटल का एकदम बीच में एक 100 फुट का एक बहुत बड़ा लोहे का जगह बनेगा। माई ड्रीम इज गोइंग टू बी ए ब्रांड एम्बेसडर। ओके ओके माया, आई विल कम टू योर क्वेश्चन। सो वहां पे वो एक बहुत बड़ा लोहा का एक बहुत बड़ा स्टैंड लगेगा, स्टील का, और उसके ऊपर में वो मूर्ति बैठेगा। सो कैन यू इमेजिन, 100 फुट का एक बहुत बड़ा ये बनेगा तोरण, मतलब उसके ऊपर 1 फुट का एक मूर्ति बैठेगा, मतलब इट्स जस्ट लाइक टाइनी। हाँ सुमिता, लाइने थेको, तुम्हार भालो लगबे गल्पटा। सो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया और उनका घर का बगल में उसने लिख दिया, डोंट डिस्टर्ब मी, क्योंकि उसको फोकस करके उसको परफॉर्म करना था। तो उसके लिए उसने वो जो जब लिखा, तब उसने क्या सोचा कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो घर का बाहर में उसने लिख दिया, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ये अभी मैं राजा का काम कर रहा हूँ। तो उसने 6th मंथ का टाइम मांगा है राजा से। वो बना रहा है बना रहा है बना रहा है। इन द मीन टाइम क्या हुआ पता है? इन द मीन टाइम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हुआ, उसका रूम में उसका बहुत पुराना एक दोस्त, जिसको कुछ पता नहीं है, उसने रूम में आया। और रूम में आने का बाद उसने उससे पूछा क्या कर रहा है। उसने पीछे मुड़ा ही नहीं, उसने अपना काम करते करते बोल रहा है कि राजा ने पूरा स्टोरी बताया कि एक काम दिया है, वो काम कर रहा हूँ, मेरा आधा घंटा लगेगा, उसका बाद मैं तेरा से बात कर रहा हूँ। इन द मीन टाइम वो क्या किया, वो घर में पूरा देख रहा है कि क्या क्या कहाँ पे रखा है। आधा घंटा बाद जब पूरा काम खत्म हो गया, तब वो घूमा। तब उसका दोस्त ने बोला, क्या बात है, इतना बिजी हो गया? तो उसने बोला, हाँ देखना राजा ने क्या मूर्ति बनाने दिया। बोला मूर्ति को दिखाया। इन द मीन टाइम उसने जब वो दीवार में जो रैक रखा था, उसमें सेम एक मूर्ति रखा था। उसने उससे पूछा, राजा ने तुझे कितना मूर्ति बनाने दिया? उसने बोला 1। बोला ओके, तो तूने 2 मूर्ति क्यों बनाया? तो उसने बोला, हे सत्तन, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू। सत्तन मेरा साथ में है। सत्तन जो आज के डेट में इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट रैंकिंग टेबल टेनिस प्लेयर है। आई एम प्राउड ऑफ हिम सत्तम, कि आपने ऑनलाइन हुए हो मेरा साथ बात करने के लिए। सत्तन बहुत बड़ा प्लेयर है आज के डेट में, जो इंडियन टेबल टेनिस धीरे धीरे इतना ग्रो कर रहा है, और उसका जो फ्लैग वो सत्तन का हाथ में है। आप लोग सब विश कीजिए कि वो ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल लाए।
क्या मेडल मिलेगा ना? आप लोग लाइक दीजिए सत्तन के लिए, तब तो पता लगेगा कि ओलंपिक के लिए मेडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा। वी ड्रीम द सेम ड्रीम, वी थिंक द सेम थिंग, वी आर ड्रीम टीम, वी आर इंडियन टीम, वी आर चैंपियन टीम, वी आर born to win. Yes, Satan, we will achieve our goal. Very soon we will work together. I will join camp, okay? मैं कैंप ज्वाइन कर रहा हूँ, जाके बात होगा। थैंक यू फॉर कमिंग। सो मैं जो स्टोरी बोल रहा था, तो उसने बोला कि देख, राजा ने मुझे एक मूर्ति बनाने दिया, लेकिन वो जो पहले वाला मूर्ति है उसमें थोड़ा सा गलती हो गया। तो उसने बोला क्या गलती? मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। बोला अच्छा से देख, वो गलती मुझे नजर आ रहा है। तो उसने अच्छे से देखा और देखा ये जो कॉर्नर है, ये जो नोज का ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे एक छोटा सा वो शेप दे रहा था, छोटा सा एक थोड़ा सा पॉइंट निकल गया। तो वो उसका दोस्त ने बोला उतना छोटा पॉइंट किसी को पता भी नहीं चलेगा, वो लगेगा 100 फुट का ऊपर, तो इतना क्यों सोच रहा है? तुझे डबल मेहनत का पैसा थोड़ी मिलेगा। उसने हंस के बोला देख मेरा दोस्त, किसी को पता चले या ना चले, खुद को पता चलेगा एंड द ऑलमाइटी गॉड को पता चलेगा। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितना मेहनत कर रहे हो कोच का सामने में। इट्स मच इम्पॉर्टेंट जब कोच कोई नहीं देख रहा है तब कितना डेडिकेटेड हो। एंड दोज हु आर इन स्पोर्ट्स, में आप लोगों को और एक एडवाइस देना चाहूँगा। स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि व्हेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिस हाउ मच यू आर कॉन्सेंट्रेट। स्पोर्ट्स का मतलब है व्हेन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, व्हेन यू आर आउटसाइड द प्रैक्टिस, लाइक इफ यू आर इन चेस, व्हेन यू आर आउटसाइड द प्रैक्टिस, इफ यू आर शूटिंग और इफ यू आर प्लेइंग आर्चरी और टेबल टेनिस और हॉकी, आई वुड लाइक टू एडवाइज यू ऑल। आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हरिंदर सर, जो हॉकी का लीजेंड कोच है, जो आज के डेट में इंडिया नहीं वर्ल्ड का अगर 2 कोच का नाम लिया जाए तो उस पे हरिंदर सर का नाम आता है, इतना पावरफुल कोच है। आई लर्न फ्रॉम दिस थिंग टू हरी सर। ये हरी सर ने मुझे सिखाया, देख मृणाल, वो 24 आवर्स में जो ग्राउंड का बाहर में डेडिकेटेड ज़्यादा रहेगा वो अच्छा ग्राउंड में परफॉर्म करेगा। सो आई वुड लाइक टू सेम यू, मतलब टेल यू द सेम, कि अगर बड़ा प्लेयर बनना है, अगर इंटरनेशनली अचीव करना है, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, in MLM industry, in education, in anything, in marketing, always remember, when you respect yourself, then only you grow fast. It's not that किसी को पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपका अपलाइन या आपका डाउनलाइन या आपका हार्टलाइन या आपका पार्टनर आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इट्स इम्पॉर्टेंट हाउ मच यू आर गिविंग रेस्पेक्ट टुवर्ड योरसेल्फ। जब आप सोते जाते हैं तब क्या सोचते हैं? मैं ऐसा भी स्पोर्ट्स पर्सन को जानता हूं जो खाली चेस या खाली टेबल टेनिस या खाली शूटिंग कर रहा है। इट्स नॉट बैड, इट्स गुड, बट दैट नॉट मीन्स एकदम पढ़ाई छोड़ दो। इसका मतलब है इसका साथ मिनिमम आप पढ़ाई करो, मैथमेटिक्स करो, इंग्लिश पढ़ो, सो दैट वेरी इजीली यू विल ग्रो फास्ट। इंद्रनील, आई होप मेरा सवाल का जो आंसर है या आपका जो भी छोटा छोटा प्लेयर है उसको पता लगेगा। और कोई सवाल है आप लोगों का पास? हाँ, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए आपको मेडिटेशन एक्सरसाइज करना पड़ेगा और लाइफ का ड्रीम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लेवल अचीव করার জন্য কি স্টেপ নেওয়া উচিত? নাও আস্ক yourself, what is the next level? How you can achieve that goal? To achieve that goal, what are the strength and what are the weakness you have? So you have to identify through this way. अगर कोई सवाल है यू कैन आस्क। चेस में अच्छा करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, खाली चेस खेलने से नहीं होगा, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन लाइफ, वेरी डिसिप्लिन लाइफ। अगर डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं तो वेरी आसानी से आप लोग खेल सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम लोग नियर अबाउट आधा घंटा से ज़्यादा हम लोग लाइन में हैं। রুমেলি দি কি লিখেছে, তোমার লাইভ প্রোগ্রাম শুনছি দেখছি, খুব ভালো লাগছে। আমারও খুব ভালো লাগছে রুমেলি দি, আপনাদের সাথে আবার নতুন করে দেখা পেয়ে আমার ভালো লাগবে। আপনাদের সাপোর্ট যদি আমি পাই নিশ্চয়ই আমি সবাইকে হেল্প করতে পারবো। মিতালি স্যার, যখন আমায় খুব কেউ ইনসাল্ট করে তখন আমার কি করা উচিত? জাস্ট ইগনোর করা উচিত, জাস্ট ইগনোর করা উচিত। যে ইনসাল্ট করছে সেটা তার ক্যারেক্টারের প্রবলেম, তোমার ক্যারেক্টারের নয়। সো তার সাথে মুখ লড়িয়ে লাভ আছে? রাস্তায় কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, রাস্তার কুকুর, হ্যাঁ, আমরা কি তার সাথে ঘেউ ঘেউ করি? রাস্তায় যদি একটা পাগল পাগলামি করে কিছু বলে আমরা কি বলি? আহা ও পাগল, ওকে মাফ করে দাও। তো সেম, রিল্যাক্স, রিলিভ ইট।
ও জানে না ও কি করছে, মাফ করে দাও। সো আমার ভালো লাগলো আপনাদের সাথে এতক্ষণ ইন্টারঅ্যাক্ট করে। আরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, পার্সোনালি লিখতে পারেন, ডেফিনেটলি আমি উত্তর দেবো। আমার খুব ভালো একটা প্রশ্ন লাগলো, পড়েই দিই। দাদা গুণী শিল্পী হতে চাই, কিন্তু দাদা কিছুতেই মনস্থির করতে পারছি না চাকরি আর আবৃত্তি নিয়ে কী করা উচিত। সো ফার্স্ট অফ অল यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप सोचते हैं तो वो क्रिएट होता है। से फॉर एग्जांपल लुक एट मी, मैं जो प्रोफेशन में हूँ, ये प्रोफेशन का साथ मेरा जो मतलब काम था पूरा डिफरेंट था। एज ए हॉकी प्लेयर आई नेवर थॉट अबाउट दैट आई वांट टू बिकम ए मेंटल टफनेस ट्रेनर, बट समहाउ कुछ इंसिडेंट, कुछ सिचुएशन हुआ तो मेरा मन में ये आया, आई वांट टू डू समथिंग। आई वाज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जॉब, गुड सैलरी, गुड फैमिली, मेरा फैमिली, फादर मदर, मेरा टोटल फैमिली, वाइफ, बच्चा, आई एम वेरी हैप्पी। बट somehow I realized no, I have to do something different. So मैंने रिस्क लिया, और रिस्क का फायदा से आज मैं जो भी हूँ वो रिस्क के लिए हूँ। So now the question is, अगर आपको नौकरी करना है तो नौकरी क्या करोगे? नौकरी का साथ अगर आपका प्रोफेशन को आप चूज कर सकते हो, इट्स गुड। बट इफ यू थिंक कि नौकरी से आपका सपना पूरा नहीं होगा, नाउ इट यू हैव टू टेक द डिसीजन। एंड इफ यू रियली नीड मोर हेल्प, पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करना, मैं जरूर आंसर देने वाला हूँ। जोईता सर, आई एम नॉट ए बिजनेस वुमन, आई एम समाप्ति's daughter, and okay, I am waiting for my IC result. I am a great tension, would like to scare some, calm down, tips with me please. Okay, exam is over, and the best part of our exam, প্রীতম আমার সাথে রয়েছে। প্রীতম কোটাল মোহনবাগানের ফুটবল প্লেয়ার, আপনারা জানেন, খুব ভালো প্লেয়ার। থ্যাংক ইউ প্রীতম আমার সাথে থাকার জন্য। আপনারাও চাইলে প্রীতমকে উইশ করতে পারেন, মোহনবাগানের খুব বড় প্লেয়ার। নট অনলি দ্যাট, ইন্ডিয়ান ফুটবল আজকে যে গ্রোথ নিয়েছে, যেটুকুই ইন্ডিয়ান ফুটবলের গ্রোথ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার মধ্যে প্রীতমের ইনভলভমেন্ট আছে। যারা ফুটবল খেলেন বা জানেন তারা নিশ্চয়ই বুঝবেন। ইন্দ্রনীল, প্রীতম, এরা সবাই খুব বড় বড় প্লেয়ার। যারা একটু খেলাধুলা দেখবেন বা জানেন তারা দেখবেন। সো আমার ভালো লাগছে সবাইকে একসাথে পেয়ে। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जोईता यू शुड नो, एक्चुअली जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है। अभी टेंशन करने के बाद आपका रिजल्ट नहीं चेंज होगा। सो इट्स बेटर एंजॉय द टाइम, बी हैप्पी एंड रेडी फॉर द ब्राइट फ्यूचर। मैं जानता हूँ यू कैन अचीव इट। सर प्लीज़ मैसेज योर व्हाट्सएप नंबर, आई रियली नीड योर एडवाइस फॉर माई शूटिंग स्पोर्ट्स। डेफिनेटली आई विल मैसेज यू। आप मुझे नंबर नोट कर लीजिए, 9830333323, 9830333323। यू कैन व्हाट्सएप मी। कल्लोलेर प्रश्न, डज मनी मैटर्स और ड्रीम? बोथ मैन, यू आर ए सक्सेसफुल पर्सनालिटी, you have to make up your mind and you can do this. So both matters, but you have to balance. সুমিতার প্রশ্ন, যখন কারোর জীবনে অনেকগুলো প্রবলেম আসে একসাথে তখন কিভাবে এগোনো? I don't think everything is problem, everything is feedback. Make yourself such a way. Anshul, make a good plan for your academy. I am ready to come. Okay, so thank you everybody. আমি দেখবো, চেষ্টা করব যদি কাল অথবা পরশু আবার আপনাদের সাথে লাইভ আসতে পারি। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ, খুব ভালো লাগলো আপনাদের সাথে থেকে। মৌসুমী নস্কর আমার নাম্বার চেয়েছেন, আমার নাম্বার আমি শেয়ার করলাম, আমার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড কলিং নাম্বার। 1 জুনের পর থেকে আমাকে কলিংয়ে পাবেন, আর হোয়াটসঅ্যাপ আপনি এখনও করতে পারেন 9830333323। অরুন্ধতী সরকার, আঙ্কেল প্লিজ অ্যান্সার। আমি কি অ্যান্সার করব আমি জানি না, আমি বুঝতে পারছি না কি অ্যান্সার করা উচিত। কোশ্চেনটাই আমি তো মানে চেসে ভালো করার একটা জিনিসই দরকার। সাম প্লেয়ার বিকাম হোম সিক অ্যান্ড দে অ্যাওয়ে ফ্রম হোম ফর লং টাইম, সামটাইম ইট বিকাম টাফ টু চেঞ্জ দেয়ার কনসেন্ট্রেশন। ওকে ইন্দ্রনীল, ইটস এ ভেরি গুড কোশ্চেন। অরুন্ধতী দি, আপনার ছেলেকে বলবেন মেসেজ করতে, আমি ডেফিনেটলি উত্তর দিয়ে দেবো। ইটস নট এ ভেরি বিগ ইস্যু।
So, Indranil, we can do something for those who are from away home. So we can take a video. अगर पॉसिबल है, वो जब भी घर में जाता है तो उसको बोलना पड़ेगा कि आप मोबाइल में आपका फादर मदर का कुछ वीडियो करके लाना, गुड मोमेंट या फादर मदर का कुछ शेयरिंग, और फादर मदर का बड़ा वाला फोटो। तो जो भी वीडियो लोग लाते हैं तो वीकली एक दिन सबका फादर मदर का वीडियो सबका मोबाइल में अगर हम लोग दिखाने का कुछ कोशिश किए, और फ्रॉम टाटा अगर उन लोगों का साथ फ़ोन में बात कराने का कोशिश कीजिए, तो शायद वी कैन हेल्प देम। ठीक है ना। होम सिक आर्मी लोग भी रहते हैं, उनका आर्मी का एग्जाम्पल देना है। अगर जो भी आज के डेट में आर्मी पीपल, दोज आर हेल्पिंग अस, दोज आर प्रोटेक्टिंग अस, the same thing in life, अगर really if you really want to protect your country you have to do something। हम लोग का साथ में अभी है इंडियन जूनियर वर्ल्ड कप टीम का गोलकीपर कृष्णा पाठक। एक बार हम लोग भी, मैं आप लोगों को एडवाइस एंड रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज इनवाइट कृष्णा। कृष्णा जी, थैंक यू, आपने वर्ल्ड कप में टीम का साथ इतना अच्छा परफॉर्म किया और इसलिए इंडिया जूनियर वर्ल्ड कप जीते हैं। कृष्णा पाठक का स्टोरी वेरी इंस्पायरिंग है। आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। उनका स्टोरी वेरी इंस्पायरिंग है एंड आई डेफिनेटली, मैं जानता हूँ অরুন্ধতী দি পার্সোনালি বলবেন, আমি চেস নিয়ে বলে দিয়েছি আগে, ভালো করে আমার শুনুন। मैं कृष्णा का स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। कृष्णा मेरा वेरी गुड स्टूडेंट है। कृष्णा बचपन में उसका मदर का देहांत हो गया था। उसका बाद उसका फादर सेकंड मैरिज किया, लेकिन कृष्णा ने धीरे धीरे डिसाइड किया, बड़ा होने लगा तो उसका फादर मदर एग्जैक्टली नेपाल में मतलब आरसीएफ कपूरथला में उसका फादर मदर उसको उनका रिलेटिव का पास छोड़ दिया। इन द मीन टाइम उसको जब इंडिया कैंप में चांस मिला, उसको खबर मिला इंडियन जूनियर वर्ल्ड कप टीम जब लंदन जाने वाला था, एक दिन पहले उसका फादर का देहांत हो गया नेपाल में। अभी कृष्णा का पास एक ऑप्शन था वो वापस चला जाएगा फादर का लास्ट जो वर्क है उसको करने के लिए और कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कृष्णा ने ये डिसाइड किया कि फादर जो चला गया उसको दिल में रखा। उसका खुद का डिसीजन था, ना हरिंदर सर का ना मेरा, किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। हम लोग बहुत दुखी थे, मन बहुत खराब था, लेकिन कृष्णा ने खुद डिसीजन लिया कि सर आई वांट टू गो विद द टीम, और कृष्णा ने किया। और वो उसका लाइफ का आप लोग यू टर्न बोल सकते हैं, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू कृष्णा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई वांट टू सी यू इन द सीनियर टीम। और मुझे पता है कृष्णा आप बहुत जल्दी सीनियर टीम में आ जाएंगे। आज के डेट में इंडियन जूनियर वर्ल्ड कप जो टीम है वो आज तक 2 बार ही जीता है, एक बार इंडिया का बाहर एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी वोन। और उसमें कृष्णा का सपोर्ट वेरी डेडिकेटेड है एंड वेरी फोकस्ड है। Thank you, Krishna, for being with us. Uh, Mr. Khan, if you want to ask any question, you can ask me. So, Indranil, it's a very challenging situation sometimes, how to overcome it. I love you too. Krishna, I love you too. I love you too. मैं बहुत खुश हूँ तुझे देख के यहाँ पे। देखो, respected all the participant of my live, I am very happy to announce that Krishna is with us, and I'm very happy. Krishna, I love you too. So it's all about mindset, and it's all about growth, and it's all about planning. So I would like to share with you regarding timeline therapy, what I learned this year. मैंने इस बार आया लंदन में, वो मैं जो सीखा, इट्स रियली गुड। टाइमलाइन थेरेपी, उसमें अगर आपको मैं ट्रेन करूंगा, इफ़ यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी। सुदर्शन जी, कैसे हैं आप? मनाली में बर्फ गिर रहा है अभी भी। आई एम वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल सुदर्शन जी, जो चेस एसोसिएशन आपको पता होगा मनाली में जो हिमाचल प्रदेश का है, उसका सेक्रेटरी है। आप सेक्रेटरी क्यों, आप सब कुछ बोल सकते हैं। सुदर्शन जी है बोल के आज हिमाचल में चेस है, एंड इन लोग मुझे इनवाइट किए थे। आई एम सो फॉर्चुनेट, वो जो इनवाइट किए थे वो इनविटेशन से मुझे बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस मिला। मुझे बहुत सीखने के लिए मिला। सबसे बड़ा बात है, मैं सिखाने से पहले सीखना पसंद करूंगा। ইন্দুভূষণ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার ফর জয়নিং। আপনাকে অনেকবার দেখেছি কিন্তু কখনো কাছে পাইনি।
থ্যাংক ইউ স্যার, আশীর্বাদ করবেন যাতে আমি সবাইকে আরো হেল্প করতে পারি। আই নিড অল দ্য সিনিয়র্স ব্লেসিংস সো দ্যাট আই ক্যান হেল্প ইন্ডিয়ান স্পোর্টস পিপল টু গ্রো ফাস্ট। Indians are the best in sports, I believe, and you also believe that. And if we really want to grow, we have to grow from here first. That is the main challenge. That is the most important challenge. We have to improve here. If we can improve here, we can grow like anything. It's all here, and we can retune, we can reprogramming our mind. I'd like to share with you all the new technique what I learned. It's called timeline therapy. So in life there is time called no time zone. What is no time zone? If you go through the timeline, अच्छा से अगर हम लोग देखें, हम लोग का जो टाइम लाइन है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा है। और वो स्ट्रेट लाइन আমাদের এক বন্ধুর ফোন এসছে। सो वो जो टाइमलाइन थेरापी है, उसमें अगर आप चाहे तो आप अपने आप को जीरो टाइम जोन में ले जा सकते हैं। व्हाट इज जीरो टाइम जोन? लाइफ जो है वो एक मोमेंट बाय मोमेंट, मोमेंट बाय मोमेंट, एक छोटा 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 मोमेंट को लेके, एक सीरीज ऑफ मोमेंट को लेके हम लोगों का लाइफ का स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं? अगर आप लोग ये देखें, आप लोग थोड़ा घुमा के देखिए अगर पॉसिबल होगा। मूवी जो हम लोग देखते हैं, मूवी कैसे बनता है? एक सीरीज ऑफ फिल्म रहता है, नियर अबाउट 20,000 या 50,000 फिल्म, और वो फिल्म को एक सर्टेन स्पीड में घुमाने का बाद जो हम लोग एक्टर को देखते हैं, वो हाथ मूव करते हैं, गाना गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। द सेम थिंग हैपन इन लाइफ। वो जो लाइफ में भी हम लोग सेम थिंग हैपन होता है कि हम लोगों का भी थाउजेंड्स एंड माइक्रो थाउजेंड्स ऑफ मोमेंट्स रहता है, और उसी मोमेंट्स को हम लोग एक 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 करके हम लोग लाइफ बनाते हैं, है ना? सो वो मोमेंट को, अगर एक मोमेंट को अगर आप इमेजिन कीजिए, आपका जो लाइफ का टाइमलाइन है ऐसे है, तो आप टाइमलाइन का ऊपर जाके अगर ऐसे करके ओवरव्यू करते हैं, आपको एक डॉट टाइमलाइन दिखाई देगा। अगर वो डॉट टाइमलाइन का अंदर आप चला जाएंगे, आप नो टाइम जोन में पहुंच जाएंगे। जो नो टाइम जोन आप अगर आप पहुंच जाएंगे, आप 10 मिनट रहेंगे, आपको लगेगा 6 घंटा से है। कभी अगर आप 10 मिनट कर लेंगे, आपको कभी कभी लगेगा यू आर लाइक एनीथिंग। कभी वो 2 मिनट भी लग सकता है। 10 मिनट आप है लेकिन आपको लगेगा वो 2 मिनट के लिए आप है। सो इट्स डिपेंड करेगा। हाँ सौरभ, definitely I will let you know when I will come to the Tata, or you can WhatsApp me your challenges, I will let you know everything. So no time zone, enjoy the no time zone. नो टाइम जोन को अगर आप एंजॉय करते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना? थैंक यू एवरीबॉडी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का साथ इतना टाइम से मैंने इंटरेक्ट किया, इतना इतना टाइम से इंटरेक्ट किया। और आपका अगर और कुछ सवाल है, और कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे मुझे दिखाई दे रहा है और कोई आया है, मेरा दोस्त अरूप नंदी। सो अरूप दा, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अगर आपको कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। हम लोग नियर अबाउट मोर देन हाफ एन आवर, नियर अबाउट 45 मिनट्स कर हो चुका है, हम लोग ऑनलाइन है। तो अगर आपको कुछ सवाल है, एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद इंडियन स्पोर्ट्स or related with anything in your professional and personal life, I would like to teach you, I would like to share with you no time zone, and it's really good. And if you go through my Facebook page, हिप्नोसिस ट्रांस का भी बहुत मैं पैटर्न सीखा। जो आज के डेट में वर्ल्ड फेमस जो ट्रांस है वो है हिप्नोटिक कैटालिप्स, जिसमें आपका बॉडी को ऐसे पूरा स्ट्रेट लाइन में एक चेयर का ऊपर रखा दिया जाएगा। सो वो चेयर का ऊपर आप रह के आप पूरा फ्लो कर सकते हैं। मेरा फोटो में देखिए, आपको पता लग जाएगा। मिस्टर चौधरी, आई ऑलरेडी शेयर माई कॉन्टेक्ट नंबर, इट्स 9830333323। So you can WhatsApp me if you have any personal issues or questions. Definitely I would like to reply you all. So वो it's very good। जो वो no time zone में अगर आप travel कर सकते हैं, it will give you some different feelings। कभी कभी no time zone में आप लोग जा सकते हैं, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार,
वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना टाइम आपका पास में है. अगर आपका पास प्रॉपर टाइम है, यू कैन एंजॉय द नो टाइम जोन, यू विल ग्रो फास्टर. नो टाइम जोन में पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी सक्सेसफुल स्पीड में होना चाहता है. अंशुमान मुखर्जी, somebody asked me some different question. Okay, so anybody, if you have any questions, you can ask me. Another 2-3 minutes मैं आप लोगों का सामने में रह सकता हूँ, और अगर आप लोगों का कुछ सवाल है मैं आंसर भी देना चाहूँगा. ठीक है, सो कुछ सवाल है आप पूछना चाहोगे? Indranil, waiting to learn new things from you which will help the new batch of TFA to reach their dream. Yes, Indranil, I am ready to help you all. I am very excited. Very soon it will be happen. ये possible है, उसके लिए थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, and we can plan together and we can work together. सुषमा, थैंक यू फ्रॉम बेंगलोर. सुषमा इज़ ए नेशनल आर्चर, बहुत बड़ा आर्चर है, और आज के डेट में वो WBCS एग्ज़ाम देने का प्रिपरेशन में है, अच्छा पढ़ाई में है, एंड वेरी गुड. जब भी मैं बेंगलोर जाता हूँ सुषमा मुझे हेल्प करता है. थैंक यू, वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट सुषमा. थैंक यू. रोहित, थैंक यू फॉर ऑनलाइन. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. Rukia, if you can also ask me if you have any questions. And thank you again everybody, those who are with me, those who are helping me. मुझे अच्छा लगा. अच्छा चेस खेलने के लिए अच्छा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा. अरुंधति जी, मैं आपको बोल रहा हूँ आपका बेटे के लिए अच्छा रूटीन मतलब पढ़ाई करना पड़ेगा. पढ़ाई कुछ नहीं करूँगा, खाली खेलूँगा, आई डोंट नो हाउ वी कैन अचीव. इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल. अगर अच्छा खेलना है यू हैव टू गो थ्रू एक सिस्टमेटिक रूटीन. एवरी डे फिजिकल प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. फिजिकल प्रैक्टिस अच्छा होगा, ब्रेन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगा. ठीक है, थैंक यू अगेन, थैंक यू. एंड आई वुड लाइक टू से दैट आप सब लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज शेयर किया, पता है क्या है? जो है आपका टाइम, जो मैं रिटर्न नहीं दे सकता हूँ. सो वो टाइम को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा करने के लिए डेफिनेटली आई वुड लाइक टू हेल्प यू ऑल स्टेप बाय स्टेप. कीप इन टच. लेट्स देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा मैं ज़रूर फिर ऑनलाइन आने का कोशिश करूँगा. किसी ने पूछा, आई रिपिट দাদা, আমাকে অনেকগুলো প্রবলেম এখন একসাথে আছে, তখন কোনো প্রবলেমকে ফোকাস করব কিভাবে? সো প্রায়োরিটাইজ করতে হবে. ইউ হ্যাভ টু প্রায়োরিটাইজ হুইচ প্রবলেম ইজ মোর ডিফিকাল্ট and which problem is less difficult and which is more important to को आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा. यू हैव टू डिसाइड, और एल्स यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिप्लाई. थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. कैसे लगा फीडबैक में लिखिएगा आप लोग. द मोर यू राइट द फीडबैक द मोर इजी टू हेल्प यू ऑल. थैंक यू. डेफिनेटली बिफोर लिविंग कैम्ब्रिज आई वुड लाइक टू कम विथ यू अगेन. मैं और एक बार आना चाहूँगा. वो कब होगा मैं आज रात या नहीं तो कल परसों तक कल बता दूंगा. कल या परसों या मे बी सैटरडे आई विल बी विथ यू ऑल. I will let you know soon. Okay. If you have any specific question, just send me through WhatsApp or Messenger. Thank you. God bless you.